So first things first, I want to tell you something about myself. So I'm a playwright, I'm a director, I'm a performer. I have written more than 30 plays, which have been performed across India, and I've performed. I could be directing or managing stagecraft and other things. And I have represented India in cities like Russia and Germany, and I've been honored by Indian Navy, former Chief of Army Staff, Governor of Jammu and Kashmir, KVMT Trust, and last year I was awarded She Inspire Awards, which was the function was organized at the Parliament of the UK, and in 2020, which seems like a long time ago, I was awarded She Awards UK here in the UK. And presently, I work at Birmingham Repertory Theatre, and I'm also scripting a play, which I had started last year. Haven't been able to finish, but it's called Beyond the Doll's House. And now I am just going to start with a small activity. So I'm going to stop screen sharing here for 1 second and come back. In one line, आप सबने मुझे पहले अपना नाम बताना है with an adjective, और एक लाइन में बताना है why theatre. But it doesn't have to be a long line. It just has to be that one line. उस एक line शिवानी. So शिवानी, आपने अपना नाम बताना है एक adjective के साथ, hi I'm this, and then एक line में why theatre, because आज हम इस room में सब लोग जुड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं. We want to, we all have this passion for theatre, but why? Just one line, and it could be just anything, because I love it, I enjoy it, or it makes me happy. It could be just that one line, why theatre. We'll start with Shivani. Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, you are. Yeah. So hi, this is Shining Shivani, and I love theater because it makes me feel more realistic. Brilliant. And next on my screen is Muskan. Hi, I'm Marvel Muskan, and I think acting is a meditation. Brilliant. That's actually true. And Shelja. Ma'am, my name is Sweet Shelja, and I love theatre because it helps me to express myself. Brilliant. Then we have Ashish Kumar Singh. Sorry. Hello, ma'am. This is Aspiring Ashish, and I like theater because it makes me believe in an idealistic world. Wow, that's quite deep. And next we have Abhit. Is it Abhit or is it Abhit? Abhit, A-B-H-I-T. Abhit. Yes, ma'am. Hi, ma'am. I am aspiring Abhit, and I love theatre because of confidence. I get confidence from it. Definitely, we all do. Next we have Akash. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are slightly less audible, but we can hear you. Hello, ma'am. It's Ambitious Akash, and I love to do theatre because it's helped to express myself, and as I want to bring change, so theatre helped me to give a message. Brilliant. Next we have Karthik. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Hi, I am confused Karthik. I love acting because I enjoy it. Thank you. Thank you, Karthik. But the first letter of the adjective that you use should be same as your name. So it has to start okay. with A, or it has to start with G in your case. So I'm sorry, ma'am. Should I come back to you? Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Next we have Anurag. Hi, ma'am. I'm adorable Anurag, and I like theater because I feel that makes me more confident to interact with the audience, I guess. Definitely it does. Next we have, okay, people are moving in my screen, so I might have missed Preetham. Hello, ma'am. This is Perfect Preetham, and I like theater because ma'am, it helps to increase my confidence, and stage fear leads to stage level, ma'am. That's all, ma'am. Definitely. Next we have Riya. I think her. Hi, ma'am. This is Ruthless Riya. Hello.
have opted for theater because I want to fight my stage fear. Well done. Well, activity. It's a very simple activity जो मैं अभी आपके साथ करने वाली हूँ. I'm going to give each one of you 10 minutes and I'm going to time it on my phone. What I'm going to do is you have to find an object near you. जैसे कि आप अभी सब most of you are at home, तो कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट जो कि एक पिलो हो सकता है, पेन, हेयर बैंड, परफ्यूम, बॉटल, ड्रेस और वॉच और एनीथिंग, एंड यूज इट एज अ प्रॉप. तो अपने अपने रूम के बाहर कोई एक ऑब्जेक्ट ढूंढना है और उस ऑब्जेक्ट को एज अ प्रॉपर्टी यूज करना है और मेरे सामने लेकर आना है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव अ स्टोरी. सो हर किसी को लाइक आई गिव 10 मिनट्स और 10 मिनट के बाद you will come back and you will have a story. और ये ऐसी story होनी चाहिए. You have to be as imaginative as you can. You can be any character. You can be an alien. You can be a singer. You can be a movie star. You can be whatever you want to be. So this is ये आपका zone है. यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो. Be imaginative. Be more creative. Like do whatever you want to do. तो example के तौर पे I have used this story which I created while I was working on this lecture. मैंने एक स्टोरी बनाई है कि मेरे पास ये एक पेन है और ये पेन मैंने पेरिस से खरीदा था एंड मैं मेरे लास्ट 2 days जब मैं ट्रैवल कर रही थी आई वेंट टू दिस स्मॉल हैंडमेड शॉप एंड जो शॉप का ओनर था वो क्लोज कर रहा था शॉप और जैसे ही मैंने ये पेन उठाया ही वाज लाइक कि जल्दी से पे करो एंड जस्ट लीव बिकॉज आई एम क्लोजिंग डाउन. तो मैंने जल्दी से पे किया एंड आई वांटेड टू लीव. But the next day when I went to the same place मैंने देखा कि वो शॉप वहां पर थी ही नहीं और उस दिन से ये पेन मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ एंड मैं इसको अपना लकी पेन मानती हूँ. और जब भी मेरा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है या इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होती है आई मेक श्योर आई यूज दिस पेन बिकॉज इट इज माई लकी पेन. सो that's the kind of story I mean I had. You can be as imaginative as you want to be. Object कुछ भी हो सकता है जो आपका मन करे. आप कुछ भी बन सकते हो. So like just get some brainstorming right here and I'm gonna is there any question before I start the timer? Is there any question that you want to ask me? Should we come back? Should I stop screen sharing? We're back. Is there any कोई क्वेश्चन कुछ असाइन लाइक कुछ टास्क समझने में आपको ऐसे लगा कि there's more that you want to ask? Is there anything? If not, just give me. No, ma'am. No, brilliant. I'll mute myself. So I'll start with. So I have opted for my watch, and this watch was given to me by my father. It was like since four years back when I was in class 10th. During my boards exam, I still remember the day. On the very next day, I was having my board exam and I lost my sports watch. So I went to my father, I'm not having a watch and I want to buy a new one. So my father just gave me his own watch. And ma'am, this watch run by the heartbeat, the pulses. And he told me that without this watch, by counting your own pulse, you can calculate that how much time you are wasting in doing unnecessary things. So take this watch and just work for the betterment of your life. Just value every single second in the fruitful manner for yourself and for the society. So this is the watch. It is very close to me. And whenever I personally feel that I'm wasting my time here and there, I start have this watch with me. So it reminds me that you have to be particular for your time and don't waste it. So, this is Brilliant. Can we all start the microphone and just give him a clap? So well done. Well done. Well done. I'm not sure if that was a true story or a false one that you created, but well ma'am, done. it's a true one. That's really sweet. That's really sweet. It's a true one, ma'am. Well done. Next we have Shivani. Yes, ma'am. So, ma'am, the story which I'm going to tell, it doesn't need to be realistic, right? No, it doesn't need to be realistic. It's just imaginary. You can Something imaginary. You can just tell us a story and we can think it's real if you're very good at acting, or we can think that
It's an imaginary story. Okay. But what it is, just tell your story. So I got this headphones of mine. My brother gifted me these headphones on my last birthday. And the strange thing about these headphones is, like, I really don't want a headphone. I wanted earphones instead of headphones. Still, जब मैंने इसको first time apply किया for listening to music, I suddenly closed my eyes and I realized कि I'm in a different world for that particular instant. जितनी देर तक मैंने ये headphones apply करे, and the world in which I was feeling really very happy, and I have all the things which I need, and I can eat anything from there. I can pick anything to eat. I can pick any. I'm free to pick any dress which I wanted to wear, and I have a very beautiful palace and a cute pet. But suddenly someone tapped me on my shoulder and I looked back. So I have to remove those headphones to listen to that person. और जैसे ही मैंने वो headphones remove करे, I'm back to the reality. Wow. Okay, next we have, okay, people have moved on my screen, so I'll start with Muskan now. Hi, ma'am. Actually, it's an imaginary story. Yeah, of course. You don't have to tell me if it's imaginary, if it's real. Just start your story. Anybody, all of you. Sure, ma'am. ये किताब मुझे उसने गिफ्ट की थी. मुझे शायरी का बहुत शौक था, तो उसने मेरे लिए एक शायरी भी लिखी थी. जब भी वो मुस्कुराती, दौड़ कर किसी किनारे पर जाती. उसकी जुल्फे जब भी लहराती, तो ये सारी दुनिया थम सी जाती. वो झूम झूम बूंदों सी बरसती. वो झूम झूम बूंदों सी बरसती. उसकी हर अदा एक अजीब सी मस्ती. उसकी हर मुस्कान ना जाने कितनों को दस्ती. उसका दिल दरिया और वो एक ख्वाबों की कश्ती. ये आखिरी शायरी थी जो उसने मेरे लिए लिखी थी. उसके बाद फिर हमारा मजहब अलग होने की वजह से हमें बीच में ही बंद करना पड़ा. Beautiful. That was beautiful. Well done. Let's clap, everybody. Louder, 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 louder. Okay, now we have Anurag. Am I audible, ma'am? Yes, yes. So the story I am going to describe is a story of commitment, a story of friendship, a story of companionship, and a story of relation, you can say. Yes, that's the story of a traditional headphone, traditional telephone, and this telephone cable. And the story begins where everyone has everyone has boycotted the traditional telephones. As we all know, ever since smartphones are introduced, we have almost evicted that telephone. But yes, ये जो टेलीफोन केबल था ये तब भी उसके साथ ही अटैच होता था, आज भी उसी के साथ अटैच होता है, हमेशा उसी के साथ अटैच होगा. And this is what it tells about the story, that the moral of the story is that where everyone has boycotted a person, the true friend, this true friend stands for him. So that was my story. Well done, Anurag. I hope I made sense. No, you did. You totally did. It was very philosophical. It was very harder class. For your own health. Okay. So have I done Shivani? Okay, I've done Shivani, Muskan, and now we have Preetam. Yes, ma'am. हाँ तो भैया हम दिखा रहे हैं आपको ये. हाँ, कहने को तो ये 2 रुपए की चीज है, मगर हाँ 2000 के चालान से बचाती है. दरअसल मेरा है भी नहीं.
मेरे दोस्त का है। ये मेरे पास कैसे आया, ये भी दरअसल एक कहानी है। तो हुआ यूं कि लॉकडाउन का दिन थे और यही हो गए होंगे हमें करीब 3 हफ्ते घर में बैठे-बैठे। तो दोस्त का फोन आता है कि यार पार्क चलते हैं घूमने। अब पार्क नजदीक ही था, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं कि घर से उतरते ही पार्क आ गए। तो हम निकले, दबार मिले कि वहां एक बैरियर दिख गया हमें। हमारी आदत है मास्क को घर पे छोड़ना और दोस्त की आदत मास्क को जेब में रखना। तो तभी हमने पीछे दोस्त के गए और मास्क डाल के अपनी जेब में डाल लिए भैया। अब वो भाई साहब ढूंढते रह गए मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है, और हमने अपने लगा लिया। अब लगाने के बाद पुलिस वाले भैया तो आ गए कि भैया आपका तो मास्क नहीं है, आप तो जाइए। तो अब भाई साहब कहते हैं यार हम तो मास्क हमेशा जेब में रखते हैं, हमारा पता नहीं कहाँ गया। तब मैंने कहा कि जेब में क्यों रखते हो, लगा के रखिए ना। अब भूल के आगे होगे घर पर कहीं जाके ढूंढिए, पहले 2000 का फाइन भरिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चोरी कर दी है। भाई साहब जिस चोरी से किसी का भला हो जाए वह चोरी चोरी नहीं होती। धन्यवाद। Well done, Preetham. It gave everybody a kick. It was very like spontaneous on there. It was good. Well done, Ashish. तो आज मैं जो चीज की कहानी सुनाने वाला हूँ, ये घड़ी है। ये घड़ी ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, बड़ी करामाती घड़ी है। आपको पता है, ये घड़ी वक्त, वो भी ऐसा वक्त जो आने वाला है, उसकी कहानी बताती है। आपको पता है, इस घड़ी ने मुझे बताया है कि फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में, गाड़ियां हवा में उड़ेंगी। लोगों के घर जगह बचाने के लिए पानी के अंदर होंगे। अरे पति पत्नी मूनलाइट डिनर के लिए सीधा मून पर जाएंगे। और तो और सबसे बड़ी बात, हम सबकी छोटी बड़ी सारी परेशानियों के हल मिल जाएंगे। थैंक यू। Well done, Ashish. Well done, Ashish. Next we have Abid. Ma'am, am I audible? Yeah, you are. Yes, ma'am. तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर और बजट फ्रेंडली दोस्त से। वो है ये हैंड। अब आप ये सोच रहे होंगे इतना प्यारा कैसे है और ये इमोशनल कैसे है। मेरे लिए इतना इमोशनल क्यों है? इसलिए क्योंकि मैं तो ठहरा जम्मू का, और ये मैंने लिया था जम्मू से। बावे वाली माता मंदिर है, वहां पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, वहां से ये लिया था मैंने 20 रुपए का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बजट फ्रेंडली कैसे? अभी बजट फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि जब भी कोई मूवीज आती है तो हमेशा वो थिएटर्स में जाते हैं, बट मैं उल्टा करता हूँ, मैं टेलीग्राम से मूवीज डाउनलोड करके इस स्टैंड के थ्रू देखता हूँ। तो उस तरह मेरे टिकट के पैसे भी बच जाते हैं और ये मेरा बजट फ्रेंडली दोस्त भी है। थैंक यू। Brilliant. Ma'am, I think you're on mute, Deepika. Sorry. Ma'am, I'm not from theater, but I really want to tell a story. Ma'am, the story is about this one. I got this yesterday, day before yesterday. And ये story है। 1 महीने पहले there's a mall outside my there's a mall, वहां से मैं रोज गुजरा करती थी। 3 दिन तक जो रोड पे बच्चे होते हैं ना, वो मेरे पीछे आते थे, दी कुछ दे दो, दी कुछ दे दो। 3 दिन तक मैंने वेट किया, फिर आई थॉट समवन शुड स्टेप अप, एंड देन मैं पार्क से मैं मूव ऑन करके एक जगह मिली, वहां उन्हें पढ़ाने लगी। फिर आई गॉट स्पेस इन जिम, वहां पे मैंने उन्हें प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग दिलाई। एंड ऑन 23rd, those kids who were begging, in the span of 1 month, they performed on the stage of Mr. and Miss Gurugram, and they were awarded by IG of Gurugram, and I received this award for that. And this is a story about this, and इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ भी because मैं उन बच्चों को थिएटर, डांस और इसके थ्रू रोड से स्टेज तक ले जाना चाहती हूँ। जब मैंने सुना आपका, और इससे इंस्पायर्ड मैं हुई थी बलवंत सर के पहले वाले
टॉक से। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मैम, एम आई ऑडिबल? या ऑफ कोर्स। ओके मैम, वो स्टार्टिंग में मैम थोड़ा मैं कंफ्यूज और नर्वस हो गया था, तो वो कर नहीं पाया था आपने एक्टिविटी। तो हाय, आई एम काइंड कार्तिक एंड ओके। तो मैम मेरी स्टोरी है 4th क्लास की। 4th क्लास में जब हमारा स्कूल ट्रिप था तो हम बहुत एक्साइटेड था। हम लोग बस में जा रहे थे, वाटर पार्क जा रहे थे। मैं अपने फ्रेंड निखिल के साथ बैठा था, तो हम लोग बस अंताक्षरी खेल रहे थे, कोई फिक्र नहीं 4th क्लास में कोई। और सबसे बड़ी बात, जो टीचर्स थे ना, वो भी स्ट्रिक्ट होते, जो वो भी एकदम फ्रेंडली हो गए थे, एकदम जोली हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे। और मैं वो मैगी लेके गया था, मम्मी ने बनाई थी। वो टिफिन में ना, वो बिल्कुल स्क्वायर शेप की, सूख के बचपन में जो टिफिन में लेके जाते थे उसी शेप की हो गई थी, पर वो टेस्टी बहुत थी। मेरा फ्रेंड निखिल है, वो सैंडविच लेके आया था और बहुत मजे कर रहे थे। तो बस जा रही थी, तो एकदम से क्या हुआ, सब लोग मजे कर रहे थे, एकदम से बस किसी गड्ढे में गई और एकदम से हम कहीं रुक गए, कहीं एकदम से कहीं ब्लैकआउट हो गया सब लोग। हम टीचर्स के साथ बाहर निकले बस से, फिर हमने देखा कि हम लोग हाईवे से पता नहीं कहाँ पर कहीं डेजर्ट में पहुंच गए हैं। फिर हमने एक देखा, एक ब्राइट लाइट हमारी तरफ आती हुई। हमने देखा कि अलादीन फ्लाइंग कारपेट पे जैस्मिन के साथ बैठा हुआ आ रहा था। पहले तो हम सब लोग डर गए कि ये हमें, मतलब कि टीचर्स भी डर गए कि ये सब बच्चों को बताने कि इधर साइड। पर फिर हमने देखा कि जो अलादीन था वो एकदम हमारे साथ फ्रेंडली होगा कि खेलो ये करो। और जो डेजर्ट था ना, उसने ऐसे चुटकी बजाई और वहां पे एक बहुत बड़ा एक महल सा खड़ा हो गया और एक ओशन आ गया। ओशन नॉर्मल वाटर वाला नहीं, ओशन में चॉकलेट मेल्ट चॉकलेट वेव, सब कुछ चॉकलेट था। और जो ट्रीज थे वहाँ टॉफी चॉकलेट टंगा हुआ था। और फिर एकदम से अर्थक्वेक आता है, सब हिलते हैं, सब कुछ सब डर गए एकदम से, एक इकट्ठे हो गए, एकदम अर्थक्वेक आता है। और फिर मैं आवाज सुनता हूँ मम्मी की, उठ जा, आज स्कूल का ट्रिप है, तो रात भर कार्टून देखता रहा, हो गया ना लेट, जल्दी उठ। और फिर सबसे स्ट्रेंज बात ये, जब मैं उठा तो मुझे अपने बेड के पास ये बोतल मिली। थैंक यू मैम। Well done, Karthik. Let's clap for Karthik. You know, I was going to say कि यहाँ तो ये मेरा चश्मा है, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले खरीदा था। तो एक दिन मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने ये चश्मा पहन के मैं बाहर गई। मैंने सोचा कुछ खा लूंगी या कहीं पे घूम लूंगी। तो जैसे ही मैं बाहर गई तो कुछ खाने पीने, तो दुकान पे ही मेरी नजर एक प्यारी सी बच्ची पे पड़ी। जैसे मैंने उस बच्ची को देखा तो उसकी जो चेहरे की मुस्कान थी, उसे देखकर कुछ देर के लिए मैं अपनी सारी परेशानी भूल गई। फिर मैंने अपना सामान लिया और मैं वापस चली रही थी। मैं फिर सोच रही थी अपनी उस दिक्कत के बारे में, तो अचानक से मुझे याद आया कि मेरे चेहरे पे तो चश्मा ही नहीं है। फिर मैं वापस गई, मैंने सोचा अरे मैं तो अपना नया चश्मा वहीं भूल गई। जब मैंने वहां गई और अपना चश्मा लिया, तो ना तो मेरा चश्मा वहां था और ना ही वो लड़की। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया अभी अभी मैं यहाँ आई थी कुछ सामान लेने, मैं चश्मा छोड़ गई थी। तो उन्होंने कहा कि क्या ये है आपका चश्मा? तो मैं खुश हो गई कि चलो मेरा चश्मा मिल गया। मैं वापस जा रही थी उसी सोच में कि क्या करूंगी कैसे करूंगी। तो फिर रास्ते में मुझे भी नजर फिर एक छोटी सी बच्ची पे पड़ी। मैंने चश्मा लगा रखा था, तो जैसे ही मैं उस छोटी सी बच्ची पे पड़ी, उसकी मुस्कुराहट उस बच्ची से भी प्यारी थी। उसकी मुस्कुराहट देखते ही फिर से मेरी सारी परेशानी चली गई। जैसे जैसे रास्ते में मैं आगे बढ़ती गई, लोगों के चेहरों पे जितनी भी मुस्कानें थी, उससे मेरी सारी परेशानियां खत्म होती गई। जैसे ही मैं घर गई, वैसे मैं भूल ही गई कि मुझे कोई परेशानी भी थी। आज जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं चश्मा लगा के बाहर चली जाती हूँ। लोगों के हंसते चेहरे देख के मैं अपनी सारी परेशानियां ही भूल जाती हूँ। थैंक यू। Well done. Well done. Who's left now? One and everyone's like मैं सबका सुन रही थी और देख रही थी आपकी एक्साइटमेंट। ऑब्वियसली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी, स्पेशली फॉर अस पीपल हु आर डूइंग थिएटर। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप घर बैठ के ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन अपने लैपटॉप पे बैठ के या फोन पर बैठकर थिएटर करने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत मुश्किल है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड यू नो यू वांट टू डू सो मेनी अदर थिंग्स, क्योंकि जब आप एक रिहर्सल रूम में या एक स्पेस में एक साथ बैठकर करते हैं थिएटर, सो उसमें बहुत सारी चीजें और हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट और होती है। एंड यू नो यू आर इन द सेम रूम, इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। बट
even though we are here, you all did really well. और मुझे एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि you're just doing it online कि हाँ यार देखते हैं कर लेंगे, ऐसा नहीं था. सबने effort put in किया, which is really good, and I'm really happy you did it. So thank you all for doing it. And now I'll quickly come back to my screen sharing. Don't think I'm letting you go now. बहुत कुछ और बातें करनी है, पर I'll do that quickly because मैं ज़्यादा lecturing में believe नहीं करती हूँ. My sessions are always activity oriented, और कुछ fun होना चाहिए, activity होनी चाहिए, because theatre is not just about listening और ये सब. पर फिर भी हम कोशिश करेंगे. कुछ चीज़ें हैं बहुत सिंपल सी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, पेन डाउन की हैं आपके लिए, और आपको फ्यूचर में भी हेल्प होगी उसको लेकर बेहतर समझने के लिए कि थिएटर का मकसद क्या है. सिर्फ स्टेज पर जाना नहीं, सिर्फ स्क्रीन के आगे एक्टिंग करना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन करना नहीं है, बट इट इज मच मच मोर. तो कुछ चीजें जो मैंने लिखी हैं, आई कैन शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू. मैं बाद में आपसे शेयर भी कर लूंगी, तो इफ यू वांट टू रीड इट लेटर ऑन आप वो भी कर सकते हैं, बट वील क्विकली गो थ्रू दैट. हम वो करेंगे और उसके बाद वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो मैं आंसर कर सकूं और कुछ मेरी कैपेसिटी में होगा जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आई विल डू दैट. सो नाउ वील कम टू माय नेक्स्ट स्लाइड. What life lessons does theatre teach? तो बहुत सारे लाइफ लेसन हैं जो हमें लगता है, हम जब थिएटर कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हम एक्टिंग सीख रहे हैं या हम एंजॉय कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने माइंड को एंगेज कर रहे हैं. बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हमें थिएटर सिखाता है, जो एक हिडन, एक थिएटर के पैकेज के अंदर एक हिडन चीजें होती हैं जो हम सीख रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं है. सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर एक्चुअली वेरी गुड व्हेन यू गो आउट इन द रियल वर्ल्ड. तो जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाँ मैं सिर्फ एक हॉबी है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ. बट जब आप एक रियल वर्ल्ड में जाते हो, जब आप एक जॉब ढूंढने जाओगे या किसी ग्रुप डिस्कशन में अपनी कंट्रीब्यूशन दोगे, आपको थिएटर बहुत हेल्प करता है. और मैं बताती हूँ कैसे. आई एम श्योर आप लोग खुद भी समझदार हो, आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट थिएटर is it's very intrinsic to the quality of theatre. The first one is communication skills. Obviously अगर आप एक बहुत ही knowledgeable इंसान है, if you have lot of experience, lot of knowledge, but if you do not have the confidence to share that experience or that knowledge with anybody across the room or anybody in a room, I think, और ये मेरा मानना है और ये सबका मानना है कि उस चीज का कोई फायदा नहीं है. अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास PhD है, यू हैव सो मेनी डिग्रीज, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ, या आप अपनी बात आगे नहीं रख पाते, आप बोल नहीं पा रहे हो अपने बारे में, या एक इंटरव्यू में अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, it does not help. And theater is that one tool that helps you to communicate. ये आपके communication skills को बेहतर करता है, ये आपकी एक आपके अंदर एक ऐसा confidence develop करता है कि आप किसी से बात करने से पहले, obviously आप सोच के बात करते हैं, पर बात करने से पहले एक डर नहीं होता है. So once you're on stage, जब आप एक stage पे खड़े होके 1500 लोगों के सामने बात कर रहे हैं, it's but obvious that you will be totally comfortable to talk in front of 3 or 4 people. So that kind of mindset हमारे अंदर theatre develop करता है. It helps for better communication skills, and in the long run, lot of people who give interviews, क्योंकि आजकल आपको सबको पता है that whenever you go try to find a job, you will have to go through a process of an exam or maybe go through a face-to-face interview. उस face-to-face interview में theatre हमेशा आपको help करेगा. So that's one thing that I've realized theatre does for you. The second is creative problem solving. अब आपको ऐसे लगता है यार creative problem solving क्या हुआ, हम problem solving कब करते हैं थिएटर में, but you do not realize कि जब भी आप एक performance create करते हैं, ये एक ऐसा art है जिसमें हमेशा deadline होती है. तो for example, I'm trying to create a performance. I know there is going to be a deadline. I know कि 15 मार्च को मेरा play है. For example, 15 मार्च को मेरा play है, मेरा नाटक है, मुझे करना है, मेरी costumes नहीं बनी है, I still have to work on my actors, I still have to do like a lot of scene work. तो ये problem solving एक ऐसी चीज है जो आपका दिमाग हमेशा करता है जब आप थिएटर में काम करते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एक्टर, और जब मैं स्टेज पे हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि 15th को डेडलाइन है, मुझे ये एक्ट करना है, मेरा रोल लर्न होना चाहिए, मुझे कुछ नया करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे अपने बॉडी पे काम करना है, मुझे अपनी स्पीच पे काम करना है. सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर सॉल्विंग while doing theater, and you don't even realize, आपको लगता है कि यार थिएटर है, कुछ नहीं है, I'm just doing it for fun, but
trust me, there's so many things inside, you know, that big fun element that you're doing. You're actually learning you know, big life lessons, and creative problem solving is one of them. तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ. I had this play, मैं आगे आपको उसकी फोटोग्राफ दिखाऊंगी. So I had this play called Henry and Anne, और उस प्ले में एक सीन वर्क हम तैयार कर रहे थे जिसमें एक लड़का, एक जो हेनरी है, जो हेनरी द 8th जो एक किंग था इंग्लैंड का, ही इज गेटिंग मैरिड टू एन बोलेन, जो उसकी सेकंड वाइफ थी. तो उनकी शादी हो रही थी, एंड सीन वर्क में क्या था कि मुझे चाहिए था कि कोई उन पर फूल बरसाए. सो जैसे ही उनकी शादी होती है, आई वांटेड कि कोई फूल बरसाए. बट लाइक वी ऑल, लाइक हम सब लोग बैठे थे साथ में, मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी, एंड वी ऑल केप्ट ऑन थिंकिंग कि ऐसा क्या करें कि वो फूल कोई बरसाए इनके ऊपर. एंड हमने जब हम स्टेज पर गए, हमने ऊपर लाइक जो एक पैनल होता है जहाँ पे लाइट्स लगी होती हैं, हमने कोशिश किया कि हम किसी को वहां पर खड़ा करेंगे और वहां से फूल बरसाएंगे उनके ऊपर. एंड देन लाइक हम ये आइडिया लाइक सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, कोई ऊपर जाएगा. पहले तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत हाइट पर होता है वो, एंड हु वुड एक्चुअली लाइक वांट टू गो देयर, और फूल बरसाने के लिए कौन जाएगा. सो वी वर रियली स्कैर्ड, यार अब कैसे करेंगे यार, ये डिफिकल्ट है, किसी की लाइफ को भी डेंजर में डालने वाली बात है. और सेकेंडली लाइक यू नो, अगर फूल बरसा दिए तो जो नेक्स्ट सीन करेंगे, जो भी स्टेज पर आएगा, स्टेज तो गंदा हो जाएगा, एंड वंस द स्टेज इज डर्टी, द नेक्स्ट एक्टर हु इज कमिंग, ही माइट जस्ट स्लिप, और he might just you know like उसके like वो पूरा स्टेज खराब हो सकता है. एंड देन वी वर लाइक नहीं यार, कुछ और करना पड़ेगा. फूल ऐसे बरसाने चाहिए कि बिल्कुल फ्रंट में हम बरसाएं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो FOH होता है, फ्रंट ऑफ हॉल जिसको बोलते हैं. सो वी थॉट कि वहां पे करते हैं, वहां पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब फूल नीचे हो जाएंगे तो वो आगे ही रहेगा, एंड पीपल कैन एक्ट लाइक यू नो इट्स नॉट गोना वर्क आउट. देन व्हाट वी डिड वाज, हमने पेपर लिया और पेपर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए, लाइक कलर्ड पेपर, छोटे छोटे टुकड़े किए, एंड व्हेन यू थ्रो दैट ऑन लाइक ऑन समबडी, या हम कहीं भी ऐसे फेंकते हैं तो वो एक इफेक्ट देता है दैट इट इज फ्लावर. आई मीन ऑब्वियसली इट इज नॉट फ्लावर, पर वो एक इफेक्ट, और एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. सो वी फाइनली डिसाइडेड टू डू दैट, और वो FOH पे करने की कोशिश की, और कुछ लोग, और फिर अचानक से आप सोचो जब चलते सीन में फूल कहाँ से आएंगे. मैंने एक सीन ऐसे डिजाइन किया कि जो भी सिपाही होंगे उस टाइम पर, वो एंटर करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक रॉयल वेडिंग है. तो जैसे ही सिपाही आएंगे, वो अपने लाइक साथ में वो पेपर और वो लाइक एक अपनी थाल में लेकर आएंगे, एंड they'll just throw it in the air. So I'll show you a picture. It's not a great picture on the right, if you can see. That was the scene that we created. Obviously picture is not doing justice to what actually happened, पर आप पीछे देख रहे हो कि शादी हो रही है, एंड और आगे उन्होंने ये ऐसे फूल किए थे. तो when it actually happened, I wish I had a video of it, because तब मुझे ऐसा लगता था वीडियो बनाने बहुत पैसे खर्चूं और फूल लाऊं और ऐसे करूं और फिर ही होगा. So that's one example of problem solving. अब लेफ्ट में मैं एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जो कि मेरे प्ले रोमियो एंड जूलियट से है. एंड इफ यू कैन सी, ये बालकनी है, और ये बालकनी अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई डोंट थिंक आप कैन एवरीबॉडी सी दिस. आपको दिख रहा है लाइक इजीली? जस्ट से यस. Yes, ma'am. ओके. सो इन दिस बालकनी अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉर्नर में आपको दिखेगा कि ये जो पाइप है ना, ये बालकनी एक्चुअली पाइप से बनी है. वो जो कौन सी पाइप होती है, एक वाइट कलर की प्लास्टिक की पाइप होती है, यू नो वाटर पाइप होती है, कौन सी पाइप? PVC पाइप. यस मैम. Yeah, that one. ये उस पाइप से पूरा फ्रेम बनाया गया है. और लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैं एग्जांपल देती हूँ. सो वी केप्ट ऑन थिंकिंग द होल प्ले जो रोमियो जूलियट है, उसमें बालकनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बालकनी इज दैट वन थिंग जो लाइक जूलियट की बालकनी सबसे रोमांटिक सीन है. वो जो उनका सीन है जहाँ पर वो पहली बार रोमियो से मिलती है और देखती है उसको और व्हाटएवर. तो वो बालकनी बहुत जरूरी थी, बट वो बालकनी ऐसी भी होनी चाहिए कि वो बालकनी हमेशा स्टेज पे ना रहे, क्योंकि अगले सीन में जब वो कहीं कुछ और करने लगते तो वो बालकनी क्या करेगी वहां पर. सो आई वांटेड अ वेरी फ्लारी काइंड ऑफ लाइक, मैं चाहती थी इस पे फूल हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आर्टिस्टिकली बहुत सुंदर लगे. तो वो मैंने चाहती तो मैं बड़ा कुछ थी, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि अगले सीन में बालकनी कहाँ जाएगी. सो इट हैज टू बी समथिंग विच इज वेरी लाइट एंड पीपल कैन जस्ट पिक इट अप एंड लिफ्ट इट, और लिफ्ट करके उसको बाहर निकाल दें.
तो आप एक्चुअली इसमें पूरा अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि whole scene happens and when the scene gets over they pick it up and the balcony goes out. So balcony हल्की बनाना जरूरी था ताकि वो उठा सके, और हमने उससे पाइप से बनाई, पूरा लाइक क्रिएट किया, और जब एक लैविश परफॉर्मेंस बन सकती है, यू कैन बी इनोवेटिव, यू कैन, सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है जो हम थिएटर में सीखते हैं, ये बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट थिएटर टीचर्स यू. I'll move on to my next slide, which is team building. Obviously हम लोग, ये कहना बहुत आसान है कि Zoom पे हम सब लोग मिल के आज हमने एक साथ काम किया है. Theater is that one industry where we all are interdependent. मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि सबसे मुश्किल चीज़ थिएटर की ये है कि you cannot work alone. अगर मैं आज decide करती हूँ that I want to go on stage and create a performance, I can't do it. I can't do it without actors. If I'm a director, how will I work without actors? If I'm an actor, how will I work without a director? चलो मान लिया कि मैंने अपने आप को खुद ही डायरेक्ट किया है और मैं एक सोलो एक्ट तैयार करती हूँ, पर एक सोलो एक्ट भी कभी सोलो नहीं होता. You need a light person, you need a marketing person, you need somebody to arrange the audience. You're not going to do it, you're not going to do everything on your own. और ये समझना कि हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, ये भी थिएटर आपको सिखाता है. व्हेन वी ऑल गेट टुगेदर, वी आर अ टीम, वी आर दिस वन टीम. अगर अच्छा प्ले होगा तो सबके लिए अच्छा है, अगर एक गलत करे या एक को एक्टर कुछ गलत करता है तो सबके लिए गलत होता है. सो दिस इज a team building is one of the main things that another one of the main thing that theater teaches you. और ये कुछ pictures हैं जो मैं आपके साथ share करना चाहती थी with my team. So this was the जो पीछे photograph, जो सबसे ऊपर वाली photograph है, this is from last year. We did हमने एक स्टूडियो प्ले किया था, सो दैट्स माय कास्ट देयर. और उसके नीचे वाला थिएटर फेस्टिवल इन मुंबई. तो प्ले के बाद वी ऑल जस्ट गॉट टुगेदर एंड वी वर लाइक लेट्स मेक अ फनी फेस एंड लेट्स टेक अ पिक्चर. सो दैट्स द पिक्चर फ्रॉम देयर. एंड आई थिंक मैंने बहुत सारा लाइक अपने थ्रू आउट माई करियर आई हैव लर्न समथिंग दैट थिएटर में आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते. इट्स एन आर्ट दैट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर एंड एट द सेम टाइम इट टीचेस यू टीम बिल्डिंग. और ये बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का जो आप थिएटर से सीखते हो. So my next slide will just focus on few very very important things that theater teaches you, that is improves imagination. जैसे आज आपने एक टास्क किया तो आपको लगता है कि आपकी इमेजिनेशन की कोई बंदिश नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा आर्ट है जो आपको फ्रीली सोचने का मौका देता है. इट लेट्स यू come out of your comfort zone, it lets you come out of that box that you live in, और आपको एक freely सोचने का मौका देता है. So it improves your imagination. एक emotional outlet है. कभी भी आप कोई problem face करते हो, और ये theater में मैं आपको example दूंगी, Stanislavski, who is literally considered the father of theater, और उन्होंने method acting जिन्होंने बनाई है, theory बनाई है, Stanislavski ने एक method बताया था कि अगर आप कोई भी पेन वाला या रोने वाली एक्टिंग करना चाहते हो तो कोई पुराना इंसिडेंट याद करो जब आपको रोना आया हो, एंड यूज दैट इमोशन इन योर एक्टिंग. और आपको हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कोई इमोशनल आउटलेट नहीं मिलता, पर इट एक्चुअली हेल्प्स यू. जब भी आप कोई इमोशन जनरेट करते हो ऑन स्टेज, आपको कहीं ना कहीं अपना कोई अंदर का दुख हो या अंदर का कोई पेन हो, वो इस तरीके से बाहर निकलती है. सो थिएटर गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म to give an emotional outlet to yourself, to give an outlet to your feelings, and it's very very important for your mental health. The next thing is physical fitness. Obviously जब हम theater करते हैं, warm up exercises करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, activities करते हैं, it is very very good for your physical fitness. It enhances memory. आप जब भी stage पर चढ़ते हो, आप बहुत सारी lines learn करते हो, बहुत सारे blocking learn करते हो. ब्लॉकिंग भी बोला जाता है. ये इसको ट्रीट करने के लिए और ट्रॉमा थेरेपी के अंदर उन्होंने एक like theater को यूज किया है, how to treat that stress disorder. And they have also used theater as a medium जिसमें आप ऑटिज्म के चिल्ड्रन को ट्रीट करने की कोशिश करते हो या उनके सोशल स्किल्स इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो. एंड सो like Alzheimer's
फॉर एग्जाम्पल अल्जाइमर्स इज दैट प्रॉब्लम जिसमें लोगों को सब कुछ भूल जाता है, तो उसको स्टोरी टेलिंग या ग्रुप थेरेपी के साथ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. ऑल्सो देर इज लाइक ऑब्वियसली जब आप एक लाइव परफॉर्मेंस करते हो या नुक्कड़ नाटक करते हो, आप लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हो, एंड आपको ऐसे लगता होगा कि किसी की बात सुनने से हम नहीं बदलेंगे, पर जब आप एक नाटक देखते हो वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो हमेशा आपको याद रहता है. यू नो, अ लाइव परफॉर्मेंस पीपल डू नॉट फॉरगेट. पीपल कैन फॉरगेट समथिंग दे हर्ड, पीपल कैन फॉरगेट something they kind of like they've read somewhere, but they will always remember a live art form. जो आपकी आंखों के सामने हुआ है वो हमेशा आपको याद रहता है. एंड थिएटर इज दैट मीडियम, और इसीलिए थिएटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी. सो नाउ we come back to reality, or I'll stop screen sharing. If you have any questions, you ask me. If you want to get in touch, बाद में like over the internet, Instagram, Facebook, Twitter, आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो. We can get in touch and share some good work. अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, just share with me, because you know I always believe us people who are passionate about theater, we are one kind of this big group, we are one family, and it's very, very important that we connect with each other, no matter where you are in the world, what you're doing, whether it's small, whether it's big, but it's always, always important to connect. And that's something I learned. I did the yes. Yes, ma'am. Is it better to depict a story or narrate a story or show a story from the past, or something that is we want to imagine or we want to be there in the future? Okay, do you mean are you trying या कुछ फ्यूचर में होने वाला है या कोई सोशल कॉज जो जिसके बारे में प्रेजेंटली आप बात करो वो उसके बारे में बात होनी चाहिए? Is that your question? Okay. Yes, ma'am. आशीष, यू नो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ तो ये बहुत बड़ा, ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि थिएटर एक्चुअली किस लिए किया जाता है. जो लोग मानते हैं कि थिएटर एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, कभी कभी वो सिर्फ एक कॉमेडी कहानी पर फोकस करेंगे. कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, थिएटर का एक अपना एक कॉज होना चाहिए, थिएटर बिना कॉज के इट्स मीनिंगलेस, वो फिर उन्हीं कहानियों के साथ काम करते हैं. एंड कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमें कुछ लाइक फन करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने लिए करना चाहिए. तो वो अपने इट्स बेसिकली परसेप्शन ऑफ अ प्ले राइट. तो प्ले राइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, और ये उसकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए. इफ आई एम अ डायरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट, इफ आई एम अ डायरेक्टर, मैं कैसा प्ले करना चाहती हूँ जो मतलब लाइक अगर आप मेरे से पूछो कैसा प्ले करना चाहती हो तुम, मैं कैसा प्ले करना चाहती हूँ जो लोग देखने आए. मैं वो दिखाना चाहती हूँ जो लोग देखना चाहते हैं. And if people want to be entertained, I want to show them entertainment. If they want to see a change in the society, I want to show them that. तो मैंने हमेशा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मैं एक तरीके के नाटक करूं. जब मैंने स्टार्ट किया था, the first play that I did was Great Expectations, जो चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवल है जिसको मैंने प्ले में क्रिएट किया, और वो इंग्लिश प्ले था. वो एक कहानी थी, वो सिर्फ एक कहानी थी. ऑब्वियसली उसके मैसेजेस थे, और उसके बाद मैंने 1-2 नाटक और किए जो बहुत ही एंटरटेनिंग थे, एंड इट हैड अदर मीनिंग्स टू इट. बट इवेंचुअली आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच वाज मीनिंगफुल. और उसके बाद मैंने काफी सारे नाटक ऐसे बनाए जो बहुत मीनिंगफुल थे. एक मैंने प्ले किया था व्हिच वाज ऑन, हमेशा फेमिनिज्म की बात करते हैं, औरतों की प्रॉब्लम्स, औरतों का ये सब, पर कोई आदमी की प्रॉब्लम के बारे में कभी नाटक नहीं लिखता. बहुत कम लोग लिखते हैं दैट यू नो देयर इज ऑलवेज दिस आइडिया कि आदमी को रोना नहीं चाहिए, एक लड़के को कभी अपना एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, अगर उसको दर्द होता है, मर्द को दर्द नहीं होता, that kind of ideology. So मैंने उस पे भी एक नाटक लिखा था, and it was appreciated by the audience and people liked it. पर वही बात है आशीष, it's all about you as a director. What do you want from life? What do you want? Do you want to change the society? But having said so, you can do both these things. You can do entertainment, आप सीट्स भी भर सकते हो, आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, और आप लोगों को मैसेज भी दे सकते हो. और जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ आप ही उठाते फिरें. एंड जब आपको एंटरटेनमेंट करनी है, जब आपको पैसा कमाना है, आप कोई ऐसा काम करें जो आपको वो चीज देता है. एंड व्हेन यू हैव टू सर्व द सोसाइटी, यू सर्व द सोसाइटी. सो
there can be that balance, or theater is that biggest kind of medium which will give you that balance. I hope I've answered, because I was talking a lot. Anybody else? Any questions? Ma'am, my question is still pending. Yeah. Oh, yeah. Sorry, you asked me why I chose acting. Is that right? Okay. मुस्कान, मैं ये बहुत क्लीशे साउंड करने वाली हूँ अभी. मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत किताबी लगती हैं. तो वो ये है कि मैंने थिएटर को नहीं चुना, थिएटर ने मुझे चुना है. और आई डोंट नो व्हेन इट स्टार्टेड, बिकॉज कहते हैं ना कि वो एक डेट बताओ जब आपने करना शुरू किया. आई डोंट नो व्हेन इट स्टार्टेड एज अ चाइल्ड, बिकॉज आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे डैड थिएटर में थे और अभी भी हैं. एंड ही इज आई एम वेरी फॉर्चुनेट लाइक दैट, बिकॉज ही इज बीन डूइंग थिएटर for past so many years, like 35 years now maybe. और उन्होंने नटरंग एक जम्मू में ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टैब्लिश किया था, और मैं बचपन से वहाँ जाती थी. एंड आई यूज्ड टू बी एक्सपोज्ड टू थिएटर, तो मैं हर दिन उनके साथ जाती थी शाम को. और मैं कभी कभी जब भी नाटक देखती थी, और मुझे हमेशा दिमाग में वो नाटक याद रहता था, और मैं उसको अपने घर पे करती रहती थी और इधर उधर. So I was very fortunate like that. I was exposed to theater at a very, very young age. And वो कब शुरू हुआ, वो कब मैं करने लगी, और वो एक थिन लाइन है जो मैं कभी डिफाइन नहीं कर पाती हूँ. पर प्रोफेशनली एज अ डायरेक्टर आई स्टार्टेड वर्किंग आई थिंक इन 2013. या 2013. तो 13 में मैंने प्रोफेशनली एज अ डायरेक्टर काम करना शुरू किया था. आई वाज वेरी यंग देन, एंड आई वाज लाइक कि मतलब मुझे कुछ पता नहीं था डायरेक्शन के बारे में, पर जो देखा था और जो सुना था, एंड जो करने की एक पैशन था, आई just had to do it. Or that's when I did my first play. But yeah, I don't know when it started. It was always there. It was always inside me, in my heart, and whatever I had seen. So that's how it happened. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone? Any questions? Yes, I have to ask. Yes, ma'am. Oh. Yeah. Go on. Ma'am, I want to ask that when you are doing well, everyone is appreciating you. But as an artist or as an actor, when you have a failure on the stage, you forgot anything. So how to battle that thing, how to overcome that thing, and how to overcome your own thoughts at that time which you are having on yourself, like a self-doubt you would be having at that particular moment. So how to overcome that situation, ma'am? So आकाश, ये तो बहुत मुश्किल है, because कहते हैं ना कि like with experience we all learn. पर एक स्टेज पर एक बहुत अजीब चीज होती है जब आप स्टेज पर जाते हो. whenever for example if I'm on stage and I'm doing something, हमेशा मैं आरुषि हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ स्टेज पर, I have to take that आरुषि out and let her go and be my character. ये बहुत जरूरी है. और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अचीव करना. वो आपको बहुत संघर्ष करने के बाद आता है. ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है. और बहुत अच्छे एक्टर 10-10 साल 20-20 साल एक्टिंग करके फिर ग्रूम होते हैं. पर वो एक एलिमेंट होता है व्हेनेवर यू ऑन स्टेज, यू आर जजिंग योरसेल्फ. आपको लग रहा है कि यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ, मेरे बाल ठीक हैं, यार मेरे पे कोई हंसेगा तो नहीं, मैं कोई कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लाइंस तो याद है. So you have to leave that baggage. जो बैगेज लेकर हम स्टेज पर चढ़ रहे हैं ना, वो बैगेज हमें घर छोड़ना है और स्टेज पर बिना किसी बैगेज के जाना है. You're just playing a character, and if you fail, it's fine. If you make a mistake on stage, it's not the end of the world. It's totally fine. सिनेमा में ये बहुत आसान है कि हम लोग एडिटिंग करते हैं और हम उसको एडिट करके कोई भी अगर गलत सीन अगर किसी ने किया होता है, वी जस्ट कट इट ऑफ. बट थिएटर में ये समझ पाना और अपने आप को इतना पुश करना या अपने आप को इतना हर्ट करना वो जरूरी नहीं है. इफ यू मेक अ मिस्टेक, इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल. वी कांट बी दोज पीपल जो मीम्स बनाते हैं. वी कांट बी दोज पीपल जो लोगों को नेगेटिविटी करते हैं या सोशल मीडिया पे अब्यूज करते हैं. वी आर नॉट दोज people. We have to be positive. We are the kind of people who will be shaping the society. We can't be narrow minded. तो narrow mindedness ना हो, अपने आप को लेके judgmental